Hello students, hope you all are well and staying safe and healthy at home. Students, in this COVID-19, we must take some safety precautions like washing our hands, using sanitizers, wearing the mask and maintaining social distancing. So आज ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ टॉपिक है वो ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ रबर। रबर की है सब तो पहला डेफिनेशन जान लेने हैं। रबर इज इलास्टिक पॉलीमेरिक सब्सटेंस मेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ ए ट्रॉपिकल प्लांट और सिंथेटिकली। एक इलास्टिक सबसटेंस है, एक इलास्टिक पॉलीमेरिक सबसटेंस है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਲੈਟੈਕਸ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲੀ ਪਲਾਂਟ, ਆਪਾਂ ਰਬਰ ਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟੈਕਸ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲੀ ਪਲਾਂਟ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। This material can be stretched without any permanent change in its dimensions. So rubber जो material है इन्हों ਆਪਾਂ stretch कर सकते हैं और stretch ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ elastic ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ property ਹੈ और stretch ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ permanent change नहीं आएगी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ force ਨੂੰ ਹਟਾਓਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ original shape और size ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ regain ਕਰ ਲੇਗਾ। That is the elasticity property of the rubber material. और रबर इज अवेलेबल नैचुरली एज वेल एज सिंथेटिक। आप आर्टिफिशियल तरीके दे नाल भी बना सकते हैं ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ नैचुरली भी रबर अवेलेबल ਹੁੰਦਾ। नैचुरल रबर है जी येलोइश अमॉर्फस इलास्टिक मटीरियल obtained from the latex of various tropical plants। प्लांट्स तो सानू एक येलोइश अमॉर्फस मटीरियल obtain ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। और synthetic rubber की ਹੁੰਦਾ rubber formed with induced properties so that it can undergo elastic deformation under stress and still return to its original form। Actually synthetic rubber ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਬਰ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਰਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰਬਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਜ਼ੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੀਏ। These are the types of rubber. This is natural rubber and this is synthetic rubber, that is artificial rubber. Next is vulcanization of rubber। एक प्रोसैस है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जिहदे विच आपां की करदे हैं, इट इज़ अ प्रोसैस इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ रॉ रबर आर इंप्रूव्ड बाय कंपाउंडिंग विद सल्फर। एक वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एक प्रोसैस है जिहदे विच असीं रॉ रबर ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਈ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਇਟ ਵਿਦ ਸਲਫਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਲਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰॉ ਰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਲਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਬਰ। ਰॉ ਰਬਰ ਇਜ਼ ਹੀਟਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਸਲਫਰ। ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰॉ ਰਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਫਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਸਲਫਰ। फिर जो आप हीटअप करा सल्फर की प्रेजेंस के इस रबर में वो की होएगा क्रॉस लिंकेजेस आर फॉर्मड बिटवीन द लीनियर चेन्स टू फॉर्म द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। लीनियर चेन्स तो अपार्ट वो क्रॉस लिंकेजेस बन जाएगियां, वो एक बॉन्ड बन जाएगा और सानू एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और जी आप हीटिंग करते हैं दैट इज़ 110 टू 140 डिग्री सैल्सीयस तक आप हीटअप करा। लीनियर स्ट्रक्चर तो सिवा सानू क्रॉस लिंकेजेस फॉर्मेशन हो जाती है सल्फर के नाल। ठीक है, और जिदा हुण एक्चुअली ये भी डिपेंड करता कि सल्फर तुसी कितना एडअप करना ये या किन्ने सल्फर की प्रेजेंस के रॉ रबर नू हीटअप करना। कुछ रबर के मटीरियल्स होंगे जिदा रबर टायर है वो 3 तो 5% तुसी सल्फर इंड्यूस कराते हो। और एक बैटरी केसिंग रबर होंगे, बैटरी नू स्टोर करने के वास्ते बैटरी केसिंग रबर वो 30% ऑफ सल्फर तक तुसी ये यूज़ करते हो, सल्फर नू तुसी एडअप करते हो। दिस इज़ योर प्रोसैस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जिहदे तुसी हीटअप किया। सो दिस इज़ द क्रूड रबर, दैट इज़ द रॉ रबर। ये तुसी सल्फर नू एडअप किया और सल्फर नू एडअप करन तो बाद तुहानू एक वल्कनाइज्ड रबर मिल गया, एक प्रोसैस मिल गया जिहदे तुसी रॉ रबर नू सल्फर दे नाल हीटअप करन तो बाद तुसी वल्कनाइज्ड रबर एक फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेंदे हो। वल्कनाइज्ड रबर इज़ मोर यूजफुल एज कंपेयर टू क्रूड रबर और रॉ रबर। ये काफ़ी सारिया प्रॉपर्टीज़ आ जाती, सल्फर एडअप हो जाता जिहदे कारण तुसी इहनू काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो।
सो ये तुसी रबर दे विच तुसी जदों सल्फर नूं एड अप कीता तां आपां किहा सी क्रॉस लिंकेजेस बन जांदे आ सल्फर दे। सो दीज आर द क्रॉस लिंकेजेस ऑफ द सल्फर क्रॉस लिंकेजेस। सो इस प्रोसैस नूं असीं कहने आ दैट इज द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। एडवांटेजेस देख लेने वल्कनाइज्ड रबर दे। इट हैज़ द गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी इंप्रूव हो जाती है। इट हैज़ द गुड रेजिलियंट प्रॉपर्टी। रेजिलियंट प्रॉपर्टी इसकी अच्छी हो जाती है जी, ठीक है। उस तो बाद हाई रेजिस्टेंट टू एटमोसफेरिक कंडीशंस। एटमोसफेरिक कंडीशंस नू रेजिस्ट करता है। प्रॉपर्टी एक ही है, हाई कर जाती, हाई रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है एटमोसफेरिक कंडीशंस नू रेजिस्ट करने दे विच। हाई रेजिस्टेंस टू वेयर एंड टीयर है जी। रेजिस्टेंट टू ऑर्गैनिक सॉल्वेंट्स। लो वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी। पोजेस लो वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी मीनस तुसी पानी दे विच भी यूज़ कर सकते हो। बैटर इलैक्ट्रिकल इंसूलेटर बन जाता, ऑल्दो इट टेंड्स टू एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर। नो डाउट आप इतने गल की कि लो वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी ये आ जाती है, ठीक है। पर असी की करते हैं, इट इज़ बैटर इलैक्ट्रिकल इंसूलेटर। इस पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी दे हैगी है ये, पर आप फिर भी की है इनू आप इलैक्ट्रिकल इंसूलेटर यूज़ कर लें। प्रॉपर्टीज़ की होनी चाहिए सिंथैटिक रबर दियाँ। सिंथैटिक रबर इज़ शुड बी फ्लैक्सीबल, शुड बी ड्यूरेबल, हार्डन्स वैन इट इज़ कूल्ड। जो आप इनू कूल करिए तो एक फाइनल शेप ऑबटेन कर ले, एक हार्ड बन जाए मटीरियल ये। इट कैन बी मोल्डेड वैन हीटेड। तो आप जो आप हीटअप करिए तो कोई भी आप मोल्ड करके शेप दे सकीए। रेजिस्टेंट टू हीट लाइट एंड कैमिकल्स, कैमिकल सॉल्वेंट्स तो, एसिड्स तो, उस तो बाद थोड़े लाइट तो या टैंपरेचर तो रेजिस्टेंस होवे। हीट एंड इलैक्ट्रिकल इंसूलेटर्स ये काम करे एज ए हीट और इलैक्ट्रिकल इंसूलेटर। किसी भी रबर मटीरियल की तुसी सिलैक्शन किद्दां करते हो भी किहड़ा मटीरियल नूं तुसी यूज़ करना, कुछ प्रॉपर्टीज़ के उपर डिपेंड करता या कुछ फैक्टर्स के उपर डिपेंड करता। जिदा सब तो पहला साडे कोल मकैनिकल प्रॉपर्टी। मकैनिकल प्रॉपर्टीज़ दे विच तुसी देखदे हो कि हार्डनैस उहदी किन्नी है, उहदी टेंसाइल स्ट्रेंथ किन्नी है या कंप्रैसिबिलिटी किन्नी है, या प्रॉपर्टीज़ नूं तुसी ध्यान दे विच रखदे हो। दैन इज़ योर इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कि उस रबर मटीरियल दे विच किन्नी कंडक्टिविटी है या किन्नी रजिस्टिविटी है, इलैक्ट्रिक करंट नूं किन्ना फ्लो होण दिंदा, किन्नी कंडक्टिविटी है या किन्ना उहनूं रजिस्ट कर रहा। दैन इज़ योर थर्मल प्रॉपर्टीज़ जिहदे विच तुसी उहदी थर्मल कंडक्टिविटी नूं चैक करदे हो और फायर रजिस्टेंट है या नहीं है, इस चीज़ नूं तुसी ध्यान च रखदे हो। इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टीज़ नूं देखदे हो कि वैदर रजिस्टेंस है या नहीं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस नूं अलग अलग एस्पैक्ट्स नूं बीयर कर सकदा या नहीं कर सकदा। और एक तुसी मटीरियल कॉस्ट नूं ध्यान दे विच रखदे हो कि जिहड़ा तुसी मटीरियल यूज़ कर रहे हो रबर मटीरियल, whether that is economical or not. So these are some of the types of rubber। कुछ rubber the types है जिन्होंने आप यूज़ करते हैं और उन्होंने distinct features है। जिदा स्टायरीन बुटाडाइन रबर है, ये स्ट्रेस क्रैकिंग रेजिस्टेंस फीचर है, एब्रेजन रेजिस्टेंस है, एजिंग रेजिस्टेंस एंड थर्मल रेजिस्टेंस है। तो इन्होंने फीचर्स की वजह के नाल ही आप इन्हों यूज़ करते हैं टायर्स बनाने वास्ते या शू के सोल्स, रबर होजेस, वायर क्लोथिंग, फ्लोर मैट्स, द एडिसिव टेप्स। ये प्रोडक्ट्स नूं आपां बनाने यूजिंग द स्टायरीन बुटाडाइन रबर। नैक्सट इज़ योर पॉलीबुटाडाइन रबर जिहदे विच एक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है और कोल्ड रेजिस्टेंस एंड एब्रेजन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। और इन्हां प्रॉपर्टीज़ के कारण ही असी इन्हां दे विच एयरप्लेन के टायर्स, एरोप्लेन के टायर्स या शू सोल्स, वाइब्रेशन प्रूफ रबर या रबर रोल्स, एक कुछ मटीरियल्स नूं आपां बना सकते हैं यूजिंग द पॉलीबुटाडाइन रबर। Then is your CR, chloroprene rubber। It has the chemical resistant property, it has the ozone resistant property, it has the aging resistance and thermal resistance properties। So आप वायर क्लोथिंग बना सकते हैं, आप कन्वेयर बेल्ट्स नूं बना सकते हैं, इंडस्ट्री च यूज़ होंदियां कन्वेयर बेल्ट्स। आप वाटरप्रूफ रबर बना सकते हैं या असी विंडो लैज रबर नूं भी बना सकते हैं यूजिंग क्लोरोप्रीन रबर। दैन इज़ योर नाइट्राइल बुटाडाइन रबर जिहदे विच एक ऑयल रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है और एब्रेजन रेजिस्टेंस है और एजिंग रेजिस्टेंस है। और ऑयल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी के कारण ही असी ऑयल होजिस नूं बना सकते हैं यूजिंग दिस रबर। प्रिंट रोल्स कैन बी मेड, वीविंग टॉप रोल्स, ऑयल कैप्स बनाई जा सकती और कन्वेयर बेल्ट्स। नैक्सट इज़ योर IRR, दैट इज़ आइसो बुटालाइन आइसोप्रीन रबर। ये गैस रेजिस्टेंस है और ओजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है जिहदे कारण टायर दी ट्यूब्स जिहड़ियां बनदियां, ऑटोमोबाइल टायर दी ट्यूब्स, दैन इज योर क्यूरिंग बैग्स है, वायर क्लोथिंग है, स्टीम होजिज है, कन्वेयर बेल्ट्स है, इन्हां
प्रॉपर्टीज़ के कारण आप काफ़ी सारी एप्लीकेशंस इस IRR तो आइसोब्यूटाइल आइसोप्रीन रबर तो ले सकते हैं। लास्ट वन इज़ योर EPDM इथिलीन प्रोपिलीन टरपॉलीमर जिहदे विच इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेजिस्टेंस हुंदी है, एजिंग रेजिस्टेंस हुंदी है और ओजन रेजिस्टेंस है और इहदे करके आपां वायर क्लोथिंग स्टीम होजेज वाटर स्ट्रीम्स और कन्वेयर बेल्ट्स नूं बनाया जा सकदा। सो अलग अलग टाइप की रबर है जिहदे विच अलग अलग तरह का फीचर है और उस फीचर के अकॉर्डिंग ही आपां उस रबर का यूज लैके आवांगे, असीं उस रबर की उस पर्टिकुलर जगह के उपर एप्लीकेशन लवांगे। सो ये कुछ रबर दियां टाइप सीगियां तां उन्हां दे एप्लीकेशन सीगियां। So this ends your chapter. In the next lecture, we will start the new chapter. Thank you very much.